السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی یا ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل عمیرہ احمد قسط نمبر 18۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلی جیسی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیں بیٹھے، ڈاکٹر ثابت علی نے فرشی نشاست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے ان سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخواں بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخواں پر بیٹھا تو ڈاکٹر ثابت علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گھبرا گیا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15 ہی منٹ کی ملاقات میں وہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا۔ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھنپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے پر احسان کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور ان ڈاکٹر ثابت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جانتے ہیں؟ اس نے سوچا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر ثابت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر ثابت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادیات نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر ثابت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ثابت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈاکٹر ثابت علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کا کام میں انوالو ہوتے ہیں اور کچھ بعد میں اس کے کام میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثابت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا کہ ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت ہی کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں، مگر پھر بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کو توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت سے اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت سے اب زیادہ محفوظ ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر ثابت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی۔ بہت ساری سہولتیں انہی لوگوں نے فراہم کی اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کی آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیادی ضرورتیں فراہم کر دینا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسلیں تعمیر کرتی رہیں۔ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیں نہ مارتے رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم نے کم از کم تماشائی جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلی اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کر کے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمان کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے تھے، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بڑی طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو، تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا میں اس پر سوچوں گا، پھر تم میری آفر کے بارے میں بھی کہو گے۔ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اس کی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا، میں آج کل کوششیں کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر سکول بنا دے۔
प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहाँ है मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहाँ स्कूल शुरू करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसे देखेंगे। हम इसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही इसे चलाना होगा। सिर्फ रुपया फराहम कर देना काफ़ी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, कल चल सकते हो मेरे साथ वहाँ? सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2-3 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा, और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूँ, इसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो इस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद गए और फिर रात को ही फुरकान के साथ गाँव चले गए। रात वहाँ क़याम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो इसके गाँव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो इस गाँव के लोगों से मिलते और वहाँ फिरते रहे। वहाँ मौजूद प्राइमरी स्कूल को देखकर सलार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था मगर स्कूल नहीं। फुरकान को इसकी तरह कोई शौक नहीं लगा। वो वहाँ के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंपस लगवाया करता था और वो देहात की ज़िंदगी और वहाँ की हालत से सलार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। फुरकान को शाम की फ़्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से इसकी बात हुई थी। इसने मुख्तसर अल्फाज में इन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मुदाखलत के बगैर इसकी बात सुनते रहे। फिर इन्होंने बड़ी संजीदगी से इसे कहा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की ज़रूरत महसूस करता हूँ लोगों को। उन्होंने सलार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरी लाइफ स्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान इसे देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बारे में हमें इस वक्त बताया जब तुम हिफ्ज़ कर चुके थे। ओके फ़ाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे। मेरे इस सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुमने हर तरह के सोशल लाइफ ख़त्म कर दी। मैंने एतराज़ नहीं किया। तुम मज़हब में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिज़नेस करने के बजाय जॉब करना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं अमेरिका में। मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। ज़रूरी हो गया है कि हम इन तमाम मामलात पर कुछ संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल तुम्हें तुम्हारी सोशल सर्कल के लिए नाकाबिले कबूल बना देगा। पहले तुम इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो वो गैर ज़रूरी है। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मज़हब ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। वो सर झुकाए इनकी बातें सुन रहा था। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो? कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा करेगी। तुम्हें अंदाज़ा है, कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है। जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो। इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम इस स्कूल पर और इन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए ज़ाया करोगे, इसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। इन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफ स्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी। फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने आसार पर? ये हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफ़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्बीह पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है। सलार ने इनके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, आपने ज़िंदगी में तवाज़न रखने की बात की। मैं वो तवाज़न ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने करियर में कहाँ पर खड़ा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ़ हैं। मैं वाकिफ़ हूँ और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा, मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं तो करियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इसने तौक़ुफ़ से कहा, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में।
ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा। मैंने सोचा है पापा, मैं शादी ही नहीं करना चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। इनका इशारा किसी तरफ था। वो जानता था वो बहुत देर कुछ नहीं कह सका। ये भी नहीं कि वो इस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे याद है, बहुत देर बाद इसने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूँ और मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं इन सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। जहाँ तक सवाल इस प्रोजेक्ट का है पापा, मुझे इसे शुरू करने दें। मेरे पास बहुत से पैसे हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ लोगों को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इससे पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। ज़िंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया वो इससे क्या कहें। वापस वाशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ़ हो गया था, मगर इस बार फ़र्क ये था कि मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सवेद अली के साथ राब्ते में था। फुरकान इस स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम इसकी जॉब का हिस्सा था। इसे इस काम के लिए बहुत सा मुआवजा दिया जा रहा था, मगर पाकिस्तान के इस गाँव में इस तरह के काम का आगाज़, और वो भी अपने वसाइल से। चंद साल पहले की सलार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद इसे अपने पे भी यकीन नहीं आता था कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था, मगर ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकालते हुए इसे अंदाज़ा हुआ था कि इसके लिए प्रोजेक्ट कम अज़ कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में इसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी से निकल गई थी जिन पर वो आधा धुन पैसा खर्च करता रहा था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसे शख्स नहीं था जिससे पैसे जमा करने की तौक़ा की जा सकती थी। एमफिल के बाद इसके पास स्कॉलरशिप था। इसे कम अज़ कम इसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। इस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते इसने पहली बार वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को गौर से देखा था। इसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी चीज़ महंगी नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। इसका किचन भी खाने पीने की चीज़ों से तकरीबन खाली था। काफ़ी, चाय, दूध और इस तरह की चंद चीज़ें। इसका अपने अपार्टमेंट में भी बहुत कम वक्त गुजारता था। जो वक्त गुजारता था वो सोने में गुजारता था। यूनिसेफ में अपनी जॉब पर जाते हुए भी इसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरता रहा। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने आखिरी बार इस तरह कोई चीज़ कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज के अलावा वो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दांस्ता तौर पर इसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा था, और लोगों के साथ भी इसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज़ जिस पर वो खर्च करता रहा था वो किताबें थीं। इस लाइफस्टाइल के साथ अगर इसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो ये कोई खिलाफे धोखा बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, इसकी ज़िंदगी के मालूमात में चौथी चीज़ कोई नहीं थी जिससे वो वाकिफ़ नहीं था। न्यूयॉर्क में इसके बहुत से दोस्त थे। यहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले इन थक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर इसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद की नवाही इलाके में शुरू किए जाने वाले स्कूल को यहाँ भी इसके जहन में महू नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा इसे हैरत होती कि इसे अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक़ होने के बावजूद आखिर इसे कभी फुरकान की तरह वो स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहिक बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई गहरी उनीसियत रखता हूँ। इससे शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था, क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास एहसास मेरे दिल में नहीं है। इससे कंधे उचका कर कहा था, ये जाने के बावजूद ये हमारा मुल्क है। हाँ, ये जाने के बावजूद अमेरिका के लिए ख़ास एहसास है। अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, इसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार हैरानी से इसे देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता। इसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे इन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने की दिक्कत महसूस होती है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूंगा तो अमेरिका को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सलार, फुरकान ने बेइख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि ये आदमी अपने मुल्क के लिए या इस जगह के लिए कोई ख़ास एहसास ना रखे जहाँ वो रहता है? फुरकान को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर इसने कुछ गलत नहीं कहा था।
पेरिस आने के बाद इसे न्यूयॉर्क की कोई भी चीज़ याद नहीं आई थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी इसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पर्ल कॉन्टिनेंट में ठहरा हुआ था। इसे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अखबार को भी तय करना था। वो लाहौर में इसके क़याम का तीसरा दिन था। इसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और इसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। और रोड पर जाते हुए अचानक किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद इसने सलार की खिड़की के पास आकर कहा, सर गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप इस पर चले जाएं। सलार ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियाँ नजर आ रही थी। सलार का रुख इस तरफ था जब एक कार ने यकदम इसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और इसके रुकने पर सलार ने फुटपाथ पर चलते हुए इसमें बैठे शख्स को एक नज़र में ही पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले इसकी सरगर्मियों का वो एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो इन दोनों ही के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करता था। इससे सलार की दोबारा मुलाकात कई साल बाद हो रही थी। वो इन सब को छोड़ चुका था। पाकिस्तानियाँ लाहौर आने पर भी इसने कभी इनके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार इससे रब्ता करने की कोशिश की थी, पर इनकी कई कोशिशों के बावजूद सलार इनसे बचने की कोशिश में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो यकदम इस तरह अचानक इसके सामने आ गया था। सलार के असाब यकदम तन गए थे। आकिफ बड़े जोशो खरोश के आले में इसकी तरफ बढ़ा। सलार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब हो गए थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार, और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की तलाह क्यों नहीं दी? इसने यके बाद दीगरे सवालात के बौछार कर दिए। इसने सलार के अंदर छलकने वाली सर्द मोहरी पर गौर किया था। सलार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछा, कि हम माल रोड पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सलार ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आकिफ ने बेतकल्फी से कहा, नहीं मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है। सलार ने तेजी से कहा। आकिफ ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो। इसने बाजू पकड़ कर खींच लिया। सलार सटपटाया लेकिन इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका मूड बहुत ख़राब होने लगा था। तो स्टडीज़ पढ़ने चले गए और फिर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ जॉब कर ली है। फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सलार ने मुख्तसर कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। या लाहौर में? कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते ही अब मुझे फ़ोन करते। कब आए हो यहाँ? आकिफ ने पूछा। कल। बस तुम फिर मेरे साथ मेरे घर रहोगे? ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सलार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। इसे इससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद इसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो इसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर। आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई है तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए हैं। आकिफ ने कहा। फिर पूछो, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए। सलार ने कहा। बट अभी आज़ाद ही फिर रहे हो? आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो। सलार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने इससे बात करते हुए ब्लू कंपार्टमेंट खोलकर इसके अंदर से एक केसर निकालने चाहिए। इसका ध्यान भटका और केसर निकालते निकालते ग्लू कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सलार की गोद और नीचे से इसके पैरों में गिर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेइख्तियार कहा। सलार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो इन चीजों को समेट कर ग्लू कंपार्टमेंट में रखने लगा था जब वो ठटक गया। किसी ने इसके जिस्म में जैसे करंट सा धरा दिया था। ग्लू कंपार्टमेंट के एक कोने में एक इयररिंग्स पड़े हुए थे। सलार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ भराकर इसने इयररिंग्स को बाहर निकाला। वो अब किसी के हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर चलती रोशनी से चमक रही थी। वो बेयकीनी के आलम में इसे देखता रहा था। बहुत साल पहले इसने इन इयररिंग्स को किसी के कानों में देखा था। बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो इन्हें अब देख रहा था। इसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम के इयररिंग्स थे। वो आंखें बंद कर कर कागज़ पर इनका डिज़ाइन उतार सकता था। हर पेज और खम को आकिफ ने इसकी हथेली से वो इयररिंग्स उठा लिया। किसी ने जैसे सलार का सख्ता तोड़ दिया। आकिफ ने इन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख दिया। ये इयररिंग्स? वो अटकते हुए बोला। ये तुम्हारी बीवी के हैं? सलार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता।
था। सलार पलकें झपकाए बगैर इसे देखता रहा। फिर इसने ससुराती हुई आवाज़ में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई थी। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा इसे क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए क्योंकि आज मेरा इसके तरफ जाने का इरादा है। आकिब बड़ी बेतकल्फी से इसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? लाड़ के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या क्या नाम है इसका? इमामा। रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती, यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है, इसने आकिब को देखते हुए सोचा। ओवर आकिब ने इसका नाम बताया। सलार ने चेहरा मोड़ कर हाथ में पकड़ी हुई चीज़ ग्लो कंपार्टमेंट में रख दी और इसे बंद कर दिया। इसे वाकई गलतफहमी हुई थी। आकिब गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश से टेक लगाकर सलार ने गहरा सांस लिया। मगर ये इसका असली नाम नहीं है। आकिब ने बात जारी रखी। असल नाम तो इसका इमामा है। सलार के कानों में कोई धमाका हुआ था या फिर कोई पिघला हुआ शीशा था जो इसके कानों में अंधेल दिया था। आकिब अब स्टीयरिंग को थोड़ा आगे झुकाकर होंठों में दबाए सिगरेट लाइटर से चला रहा था। तुमने क्या कहा? सलार की आवाज़ में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिब ने सिगरेट का कश लेते हुए इसे देखा। नाम बता रहे थे तुम इसका? हाँ इमामा, तुम जानते हो इसे? आकिब ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सलार को देखा। खिड़की का शीशा अब इसने खोल दिया था। सलार यक तक इसे देखता रहा जैसे वो आकिब को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब इसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो इसे? आकिब ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सलार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ से किसी घाई से आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहाँ इसने कभी इमामा के होने का तसव्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी से आकिब ने बहुत गौर से इसे देखा। इसके जर्द पड़े हुए चेहरे को, इसके हाथों की बंद मुट्ठी को, इसके कपकपाते होंठों को, इसके बेरब्त बेमायनी लफ्ज़ों को। आकिब मुस्कुरा दिया। इसने इसके कंधे पर तसल्ली अमेज़ अंदाज में थपकी थी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारी और इसके दरमियान कुछ है तो कोई बात नहीं, हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिब ने कहका लगाया। फिर इसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। क्लिक इस देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी वे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।